हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं। आज इस क्लास में हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। द इमेजेस used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन डायरेक्शंस। Each question below has one or two blanks, each blanks indicating that something has been omitted. Choose the set of words for each blanks which best fits the meaning of the sentence as a whole. So filling the blanks के questions हैं। Questions पढ़ लेते हैं। Since it does not have the dash to do anything beyond sending out notices, the corporation has now decided to take steps to attach movable properties such as cars so that people take the notices more dash. So options दिए गए, options पढ़ लेते हैं। A authority, appropriately. B influence, justly. C guts, sincerely. D pressure, gravely. E power, seriously. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही चुनाव करना है। सही चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर ई पावर सीरियसली। सोल्यूशन की अगर बात करें, E among the options only authority and power fit well in the first blank, but in the second blank appropriately does not fit well. So option A gets eliminated, thereby making option E the correct choice. Example, power and seriously. These two words fit in the blank well, make the sentence meaningful. So sentence को इस तरह से पढ़ेंगे हम। Since it does not have the power to do anything beyond sending out notices, the corporation has now decided to take steps to attach movable properties such as cars so that people take the notices more seriously. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन डायरेक्शंस। A sentence with two blanks is given followed by 5 options. The correct answer must fill both the blanks to make the sentence meaningfully and grammatically correct. So sentence है, a parable is a story with a moral, the story being dash of the underlying moral. Options है A familiar, B identical, C irrelevant, D illustrative, E summary. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है और इस ब्लैंक को भरना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर ई समरी। सोल्यूशन है E summary is the only word that fits in the blank contextually. Rest options are irrelevant in the context of the sentence. So summary is the best choice here. Next question. Directions. A sentence with 2 blanks is given, followed by 5 options. The correct answer must fill both the blanks to make the sentence meaningfully and grammatically correct. So IPS clerk Mays 2021. A poor diet can cause the wasting of kwashiorkor in acute cases and the dash of marasmus in chronic cases of malnutrition. So options दिए गए हैं। Imported, B exhibiting, C hunting, D stunting, E none. So exhibiting का मतलब क्या होता है? शो करना कोई चीज, किसी चीज को शो करना। So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है डी स्टंटिंग। सॉल्यूशन है
The word stunting means inhibiting or impending. So inhibit का मतलब क्या होता है? मंद करना, किसी चीज को कम करना. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. IPS clerk Mains 2021. The role of a museum is not to house historical artifacts and put them on display, often with some minimal dash to help visitors identify what is in front of them. So म्यूजियम के रोल की बात चल रही है यहाँ पे. सो ऑप्शन दिए गए. ए लेबलिंग, बी लेवलिंग, सी रिस्पॉन्स, डी शोइंग, ई नन. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर ए लेबलिंग. सोल्यूशन है द वर्ड लेबलिंग मीन्स टिकटिंग और स्टैंपिंग समथिंग. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन है वी आर डैश द पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग आवर ओन हाउस. सो वी आर डैश द पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग आवर ओन हाउस. तो घर खरीदने की पॉसिबिलिटी की बात चल रही है यहाँ पे. ऑप्शन है ए जजिंग, बी इनिशिएटिंग, सी थ्रेटनिंग, डी अप्लाइंग एंड ई कंसिडरिंग. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर ई कंसिडरिंग. सोल्यूशन है E. Considering is the only option that makes the sentence contextually and meaningfully correct. Rest of the options do not go correctly with possibility. So we are considering the possibility. So consider का मतलब मानना, समझना, सोचना, इस तरीके से. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन है देयर इज डैश चांस ऑफ सीइंग हर अगेन डैश सी लीव्स. सो दो ब्लैंक्स दिए गए हैं. दोनों ब्लैंक्स को आपको फिल करना है. ऑप्शन दिए गए हैं. ए परहैप्स, व्हेन, बी ऑल्सो एज, सी लिटिल बिफोर, डी फुल देयरफॉर, ई मोर आफ्टर. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है सी लिटिल और बिफोर. सोल्यूशन है सी हियर देयर इज लिटिल चांस ऑफ सीइंग हर अगेन मींस नॉट मच और प्रैक्टिकली नन ऑफ चांसेस ऑफ सीइंग हर अगेन बिफोर द लीव्स. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन है माय कलीग इज वन ऑफ द काइंडेस्ट पीपल डैश. सो दिए गए ऑप्शन है दैट आई नोज, बी आई नो, सी हु आई नो, डी विच आई नो, ई आई हैड नोन. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही है. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है बी आई नो. सोल्यूशन है बी माय कलीग इज वन ऑफ द काइंडेस्ट पीपल आई नो इज द करेक्ट एंड कंप्लीट सेंटेंस that and which cannot be used as we are talking about human beings. I had is also incorrect as the tense of the sentence is in present tense. So जो I know ऑप्शन है वो करेक्ट है हमारा. That और which यहाँ पे यूज नहीं की जा सकती क्योंकि हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज फुलिश टू वेंट योर स्प्लीन ऑन ए एन डैश ऑब्जेक्ट स्टिल यू मेक डैश एनिमीज दैट वे. सो स्प्लीन का मतलब क्या होता है? एक ऑर्गन, अ काइंड ऑफ ऑर्गन. सो ऑप्शन दिए गए हैं इमोबाइल, बिटर,
बी इंटरेस्टिंग क्यूरियस, सी ह्यूमेन मोर, डी इनएनिमेट फ्यूअर, ई नन ऑफ दीज। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है डी इनएनिमेट फ्यूअर। सो सॉल्यूशन की अगर बात करें, डी spleen means anger here, so according to the meaning of the sentence the object should be inanimate, lifeless. So यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ा जाएगा, इट इज फुलिश टू वेंट योर स्प्लीन ऑन एन डैश ऑब्जेक्ट, यानी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, स्टिल यू मेक फ्यूअर एनिमीज दैट वे। आशा करते हैं आप आंसर समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डायरेक्शंस, a sentence with 2 blanks is given followed by 5 options. The correct answer must fill both the blanks to make the sentence meaningfully and grammatically correct. So question है IBPS clerk Mays 2021. Question है, compromise is dash to passionate natures because it seems to surrender, and to intellectual natures it seems a dash. So दो blanks दिए गए हैं, दोनों को fill करना है आपको। Options दिए गए हैं, unsuited, सबमिशन। सबमिशन का मतलब क्या होता है, समर्पण कर देना। बी ऑडियस, कंफ्यूजन। सो हियर ऑडियस मीन्स अनप्लीजेंट। सी इंटिमिडेशंस, डाइकोटोमी। डाइकोटोमी का मतलब हो गया एक तरीके से वाद विवाद या विचार विमर्श करना, और इस तरह से आर्ग्यूमेंट। डी इनहेरेंट फैब्रिकेशन, ई नन ऑफ दीज। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ए अनस्यूटेड सबमिशन। सॉल्यूशन है C and D can be eliminated because intimidations is a noun, whereas we have to fill an adjective. Inherent will give the sentence a positive meaning, whereas it is negative towards compromise. A and B are available options because inherent and odious are both negative words. Compromise and confusion although do not fit well. So the correct option is A, unsuited submission. So sentence को इस तरह से पढ़ेंगे हम, compromise is unsuited to passionate natures because it seems to surrender, and to intellectual natures it seems a submission. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द विलेज हेडमैन वॉज अनलेटर्ड। अनलेटर्ड का मतलब क्या होता है, इलिटरेट, बट ही वॉज नो फूल, ही कुड सी थ्रू द डैश ऑफ द बिजनेस मैन्स पोजिशन एंड प्रॉम्प्टली हिम डाउन। सो ऑप्शन दिए गए, ए डिस्क्रिप्शन, फोर्स्ड, बी नाइविटी टर्न, सी पोटेंशियल फोर्स्ड, डी सोफिस्ट्री टर्न, ई नन ऑफ दीज। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है डी सोफिस्ट्री टर्न। सोल्यूशन है डी अ प्रपोजल is turned down, not forced down. So we have to choose from B and D. Naivety means inexperience and sophistry means clever reasoning done to mislead. So naivety means inexperience. एक आपने वर्ड सुना होगा नाइव, तो नाइव का मतलब क्या होता है, नौसिखिया। और sophistry means clever reasoning done to mislead. So एक तरीके से clever, चतुराई दिखाना किसी को मिसलीड करने के लिए। Sophistry and turn are the appropriate fillers for the sentence. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The newly opened restaurant at the district center dash to the taste of people from all walks of life, and one is likely to find an dash group here there. So दिए गए ऑप्शन है अपील्स, आर्किटाइपल, बी पेंडर्स, कॉनेजर. सो कॉनेजर कौन होता है? जो मतलब सही समझ रखता है खाने पीने की चीजों की या म्यूजिक की. सी केटर्स, एक्लिक्टिक, डी इनहिबिट्स, डाइवर्स, ई नन ऑफ दीज. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है सी केटर्स एक्लेक्टिक. सोल्यूशन है सी द फर्स्ट blank could be filled either by appeal or caters because inhibits means prevents or restrained and panders means satisfying vulgar taste. So we have two options between A and C. Archetypal means of a particular kind while eclectic means choosing from various sources. Eclectic goes well with the meaning of the sentence. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज मोमेंट्री फॉर ही हैज डैश मोर स्ट्रेन एंड एंजाइटी देन एनी अमंग अस. सो ऑप्शन दिए गए हैं विजन फॉरगॉटन, बी एब्रेशन अंडरगोन, सी आउटक्राई डिस्क्राइब्ड, डी सेनिलिटी अंडरस्टूड, ई नन ऑफ दीज. सो सेनिलिटी का मतलब क्या होता है? सठियाना. एक तरीके से एक तरह की स्टेट हो गई. सो आशा करते हैं आप ऑप्शन समझ चुके हैं. दिए गए ऑप्शंस को आपको फिल करना है. फिल करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आप क्वेश्चन आप सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है बी एब्रेशन अंडरगोन. सोल्यूशन है बी विजन अ ड्रीम. एब्रेशन इज deviation from the standard behaviors. Outcries, severe complaints, and salinity is condition in old age. Momentary can either be aberration or vision. But in the sense of sentence, it is something that calls for some adjustment from others. It will be therefore be aberration. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लर्निंग इज मोर एफिशिएंट व्हेन इट इज डैश, इट इज लेस एफिशिएंट व्हेन इट इज डैश. सो कहा गया है कि लर्निंग ज्यादा एफिशिएंट है व्हेन इट इज डैश और कम एफिशिएंट है व्हेन इट इज डैश. सो दिए गए ऑप्शंस को आपको फिल करना है. इनमें ब्लैंक्स तो दिए गए हैं. ए है फास्ट स्लो, बी फन ड्रजरी, सी फैपिट टर्टल स्लो, डी टीडियस लाइक अ जॉय राइड, ई नन ऑफ दीज. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है. सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा. आपका समय शुरू होता है अब. आशा करते हैं आपका चुनाव सही है. सो हियर द वर्ड ड्रजरी मीन्स हार्ड और बोरिंग और टेडियस मीन्स ऑल्सो बोरिंग. करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं. करेक्ट आंसर है बी फन ड्रजरी. सोल्यूशन है बी लर्निंग कैन बी मेड वेरी एफिशिएंट इफ इट इज डिलीवर्ड इन द फॉर्म ऑफ फन थ्रू गेम्स और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस. ड्रजरी मीन्स हार्ड मोनोटोनस रूटीन वर्क. सो मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? अगेन बोरिंग, रोजाना का, जिससे ऊब चुके हैं आप. क्लियरली इट मेक्स लर्निंग लेस एफिशिएंट. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं. क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेट इज अ मीडियम वेयर द यूजर्स हैव नियरली डैश चॉइसेस एंड डैश constraints about where to go and what to do. सो इंटरनेट एक साधन है, माध्यम है, जहां पे यूजर्स हैव नियरली डैश चॉइसेस एंड डैश
कंस्ट्रेंट्स अबाउट वेयर टू गो, कहाँ जाए और क्या करें। आशा करते हैं आप क्वेश्चन समझ चुके हैं। ऑप्शंस दिए गए, ए अनबैलेंस्ड, नॉन एग्जिस्टेंट, बी एम्बैरेसिंग, नो, सी अनलिमिटेड, मिनिमल, डी चॉकिंग, शॉकिंग, ई नन ऑफ दीज। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी अनलिमिटेड मिनिमल। सोल्यूशन है सी, द इंटरनेट ऑफर्स अनलिमिटेड चॉइसेस एंड मिनिमल कंस्ट्रेंट्स टू अदर्स, टू द यूजर्स। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। So next question is, the present constitution will see dash amendments, but its basic structure will survive. A much more, B too many more, C quite a few more, D many more, E none of these. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है डी मैनी मोर। सोल्यूशन है डी much means great in quantity, measure or degree. Many means a large or considerable number of persons or things. So many more is the right usage. So the present constitution will see many more amendments, but its basic structure will survive. So इस तरह से हम सेंटेंस देखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, द डैश सक्सेसफुली repelled every dash on the city. So दिए गए ऑप्शंस है, ए डिफेंडर्स कमेंट, बी सिटीजन्स onslaught, C thieves robbery, D judge criticism, E none of these. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी सिटीजन्स ऑनस्लॉट। सोल्यूशन है, यू कैन नॉट रिपेल ड्राइव अवे। रिपेल का मतलब ड्राइव अवे एक तरीके से, कमेंट्स और क्रिटिसिज्म। Only an attack or onslaught can be repelled, so the pair of most suited words would be citizens onslaught. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज डैश वेरी क्लेवर बट ही डैश परफॉर्म एक्सीलेंटली। सो ऑप्शन दिए गए, सर्टेनली, ऑब्वियसली, बी नेवर ऑल्सो, सी नॉट ऑलवेज, डी रेयरली सेल्डम, ई नन ऑफ दीज। सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी नॉट ऑलवेज। सोल्यूशन है सी, सिंस देयर इज अ but between the two parts of the sentence the passive words should be antonyms A and D, thus get eliminated. Never also do not fit the sense of the sentence properly, thus not are the most suitable fillers for the given sentence. So sentence को इस तरह से पढ़ेंगे हम, he was not very clever but he always performed excellently. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A dash analysis of these substances will show that they differ dash. So ऑप्शंस दिए गए हैं, ए रैंडम मिनटली, बी डिटेल्ड एसेंशियली, सी केयरफुल कंप्लीटली, डी फाइनल स्ट्रक्चरली, ई नन ऑफ दीज। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है।
सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर केयरफुल कंप्लीटली। सोल्यूशन की अगर बात करें, सी एन एनालिसिस मस्ट बी केयरफुल, इट मे और मे नॉट बी डिटेल्ड एंड फाइनल, इट सर्टेनली शुड नॉट बी random, thus A is eliminated. Of the remaining, careful is the most appropriate choice for the sentence. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। When the dash polished the stones, they gleamed with a breathtaking brilliance. So ऑप्शन दिए गए, A ग्राफोलॉजिस्ट, B कॉस्मेटोलॉजिस्ट, C lapidary, D बीगल, E none of these. सो लेपिडरी का मतलब क्या होता है? पॉलिश करना जेम्स को। और बीगल का मतलब होता है एक डॉग की ब्रीड। सो आशा करते हैं ऑप्शन समझ चुके हैं। दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी लेपिडरी। सोल्यूशन है सी ग्राफोलॉजिस्ट इज वन हु स्टडीज हैंड राइटिंग। सो ग्राफोलॉजिस्ट कौन होता है? जो स्टडी करता है हैंड राइटिंग को। वाइल अ कॉस्मोटोलॉजिस्ट इज अ पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स। Beagle is a species of dog and lapidary is a person skilled in polishing of stones and gems. So आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। Next question. The perpetual spinning of particles is much like that of a top, with one significant difference. Unlike the top, the particles have no need to be wound up, for dash is one of their dash properties. So दोनों ब्लैंक्स को फिल करना है आपको। ऑप्शन दिए गए हैं, ए रेवोल्यूशन रेडिकल, बी रोटेशन इंट्रिंसिक, सी मोशन इंटेंजिबल, डी एक्सेलरेशन हाइपोथेटिकल, ई नन ऑफ दीज। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी रोटेशन इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? बेसिक, किसी चीज का फंडामेंटल। सॉल्यूशन है बी इफ द पार्टिकल्स नीड नो वुंडिंग देन स्पिनिंग इज देयर नेचुरल प्रॉपर्टी। सो द फिलर और द सेकंड ब्लैंक शुड बी सिनोनिम्स टू नेचुरल और internal. Radical means drastic. Intrinsic is inbuilt or internal. Intangible is something that is not available in the physical form. Hypothetical is assumed. Thus, intrinsic will be the filler for the second gap. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The dash terrorist was finally dashed by the police. ऑप्शन दिए गए, A famous apprehended, B notorious nabbed. सो एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है? पकड़ना, एक तरीके से कैच करना। नोटोरियस का मतलब कुख्यात, बदमाश। सी क्राफ्टी एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब किसी को स्कॉल्ड कर देना। डी रिनॉन्ड कोर्ट, ई नन ऑफ दीज। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी नोटोरियस नैब्ड। सोल्यूशन है बी apprehend means to arrest, nabbed means to catch, admonish is scolding mildly. The second gap could be filled by either option A, B, or D. Renowned means popular for some talent or skill. Thus, two can be eliminated. The choice is between A and B. Notorious means popular for wrong reasons and is therefore a more appropriate choice than famous.
सो सेंटेंस इस तरीके से पढ़ेंगे हम। द नोटोरियस टेररिस्ट वाज फाइनली नैब्ड बाय द पुलिस। तो पुलिस ने फाइनली उसे पकड़ लिया, कुख्यात था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द टू असिस्टेंट्स वी एम्प्लॉयड लास्ट मंथ आई फाइंड रमन डैश हार्ड वर्किंग। सो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए मोस्ट, बी मोर, सी लीस्ट, डी ओनली, ई नन ऑफ दीज। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव से करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी मोर। सोल्यूशन है बी, सिंस देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू अ कंपैरेटिव डिग्री मस्ट बी यूज्ड हियर। सो यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है, तो इसलिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे यहाँ पे। मोर हार्ड वर्किंग, ज्यादा हार्ड वर्किंग है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज सो फास्टिडियस दैट डैश ऑफ द थ्री हाउसेज वाज लाइक्ड बाय हर। ए नीदर, बी ईदर, सी नन, डी नो वन, ई नन ऑफ दीज। सो एक तो फास्टिडियस का मतलब होता है कि बहुत ही केयरफुल तरीके से चीज़ों को देखना, और एक इसका मतलब और होता है तुनक मिजाज वाला जो इंसान होता है, छोटी छोटी चीज़ों पे एक तरीके से तुनक जाता है। सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव से करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी नन। सोल्यूशन की अगर बात करें, सिंस द नंबर्स आर मोर देन टू, नीदर कैन नॉट बी यूज। तो नंबर दो है, वो दो से ज्यादा है, सो नीदर तो यूज कर नहीं सकते हम, क्योंकि नीदर का यूज हम करते हैं दो के लिए। इधर इज पॉजिटिव, सो विल अपोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इधर पॉजिटिव वे में है तो अपोज कर देगा वो मीनिंग को सेंटेंस के। एंड नो वन इज यूज फॉर पर्सन नॉट थिंग्स। सो द करेक्ट आंसर इज नन, नन ऑफ द थ्री हाउसेज, बिकॉज नन इज यूज फॉर मोर देन थ्री, मोर देन टू। आशा करते हैं आप समझ चुके, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Dash a very long time this city has been prosperous. A since, B for, C from, D till, E none of these. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी फोर। सोल्यूशन है बी, in the perfect continuous tense only for and since are used. Since is used to suggest a particular time in past and for is used to suggest a time period. A long time suggests a time period, so for will be the answer. So हम यूज करेंगे यहाँ पे for a very long time. आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मदर ऑफ द डेड चाइल्ड वाज ओवरवेल्म्ड एंड डैश ग्रीफ। सो ऑप्शन है ए बाय, बी विद, सी फ्रॉम, डी फॉर, ई नन ऑफ दीज। सो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी विद। सोल्यूशन है बी, विद इज यूज विद ओवरवेल्म्ड, सो ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ। आशा करते हैं आपने इस क्लास से काफी कुछ सीखा। फिर से किसी अन्य सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।